All right, everybody. So you can see one thing that I have opened one random paper in front of you. Let's suppose you have the same paper in your CIs as well. Okay. Now remember one thing. Remember one thing. This is non-calculator paper. Okay. So whenever you see the paper, how to attempt the questions. First of all, this is the first time that the syllabus of O levels and IGCSE has changed. So you will experience 25 to 26 questions in non-calculator paper in your exam. ठीक है आपको 25 to 26 questions जो हैं वो पेपर में देखने को मिलेंगे. So what do you have to do as a student? आज हम लोग यहाँ पर डबल प्रैक्टिस करेंगे. थोड़ी सी नॉन कैलकुलेटर और थोड़ी सी विद कैलकुलेटर. और कंटेंट आईजीसीएसई का होगा तो इसलिए थोड़ा सा ओ लेवल्स वाले बच्चे भी जो हैं वो भी इसको एंजॉय करें. ठीक है. अच्छा. The second part is that as a student you need to understand one thing, that how you should be attempting a particular question paper in exam. एग्जाम के अंदर there would be some easy questions. उन easy questions में आपके नंबर जाने नहीं चाहिए. Let's say let me start this paper and let's see how can we proceed this paper without the help of calculator. You can see one thing. The question number one I have is, it is write 43.07862. If you can see that 07862, it's 5 decimal place number. The examiner is saying correct to the third decimal place. Now, remember one thing, don't lose your credit here. It's very easy. So this would be 43.07862. The third decimal place is this 8. Now you have to eliminate 6 and 2, but you have to see that after 8 there is a 6, and 6 is greater than 5 or equals to 5. If a number is greater than or equals to 5, you have to add 1 while rounding off. So that number would be in front of you would be 43.07, 8 or 9. 8 or 9. 9. 9. It would be 9 because the digit after 8 is 6, which is greater than or equals to 5. So that is the reason I added 1 to the previous one. That is 43.079. 43.079, 1 mark for that particular question. And this sort of question will come in your CIEs as well for 1 mark. At midnight, the temperature is minus 7 degrees. At 11 a.m. the next day, the temperature is 12 degrees. Find the increase in temperature. Examiner is not asking about what is the temperature. Examiner is just asking how much temperature has increased. And remember one thing, increase and decrease, they have no symbol. Means that there no you don't have to write any sign with that plus or minus. कोई sign लगाने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है. ठीक है. At midnight, the temperature मतलब कि रात को temperature is -7. सुबह early morning 11 a.m. almost afternoon. The next day, the temperature is 12 degrees. Find the increase in temperature. How much in temperature has increased? We know that on y-axis, minus 7 is here, and this is plus 12. And how much is this increase? Obviously, this increase is 19 because 12 plus 7 is 19 degrees. That would be the increase in temperature without having any working. You are allowed to not write anything if the question is for 1 mark. So in 1 mark questions, you will be given 1 mark without writing any working in the question. Then अगर आप लॉजिक पूछेंगे तो लॉजिक ये है कि 12 माइनस इंटू -7 आपने डिफरेंस फाइंड करना होगा. तो 12 माइनस -7, तो माइनस माइनस प्लस, तो 12 प्लस 7 इज 19. ठीक है. Write these number order of size starting with the smallest value. You can see that you have fraction available, you have percentage available, you have decimal available, you have again a fraction and again a decimal. So out of 4, you have 2 decimals, 2 fractions, and 1 percentage. Now remember one thing. Now this is your choice if you want to convert these numbers in ascending order with respect to percentage, with respect to decimals, with respect to fractions. Now that is your choice. Every candidate is allowed to, but you have to look at the question very carefully. I can see one thing here very carefully, that if I multiply 100 with 60, 100 with 0.6, it would be 60%.
100 with 16 by 25, that 100 multiplication would be easy because there is a 25 in the denominator. I can do some cutting. And 100 would be multiplied here. So it means that converting all of them in percentage is the easy technique here. But if you are not following that and you want everything in decimals, that is also your choice in the exam. Okay? There is no hard and fast rule for that. For example, if you want to convert all of them into decimals, so two of them, they are already decimal. Third one is a percentage, which is already a decimal. You can write like that. That 66 divided by 100 would be 0.66. This is already 0.6. This is already 0.606. Now we are left to convert 2 by 3 and 16 by 25 only. 16 by 25 can be converted into percentage because I can convert the denominator into 100. If I just multiply with 4, so 16 times 4 is 64, and 64 divided by 100 would be 0.64. Look at the first one, it is 2 by 3. 2 by 3 is what? 2 divided by 3. So point will come and you will write 0. 2 times 6 is 18. 2 will come down. Again, I will drag a 0 because of 1 point already written. So it would be 0.666 recurring. So this number is 0.6666. I wrote 46 here because I have till 3 decimal places. Now decide everybody. You can see one thing that I have 5 decimals in front of me. Why I'm talking in that pace today, it is something like a paper session. So remember one thing, these questions, they are for sure gonna come and you have to just stay confident while writing them. Remember one thing, if you have converted them in percentages, decimals or fractions, remember one thing, you have to write original numbers on answer line. Answer says that the first number should be the smallest number. So now you can see one thing, all of them, they have um, 4 decimal places. I have 2 decimal place. I have 3 decimal place. There is only one digit which has only one decimal place and which is 0.6. And that is what the smallest number is. And 0.6 itself is a 0.6 in original question. So 0.6 is the smallest number. So what I'm going to do is I'm going to write a cross on that. मैं इसके ऊपर एक cross लगा सकता हूँ कि यार बस ये number जो है ये खत्म हो गया. Now you can see one thing. After 0.6, now we have to look at the second decimal place. In the first digit, we have 0.66, second digit 0.66, third digit 0.64, and the fourth digit is 0.60. So my second digit decimal place is smaller here. So my second smallest is 0.606, 0.606, which is already decimal in the question as well. So मैं यहाँ पे भी इसको क्रॉस लगा सकता हूँ कि ये भी हो गया. ठीक है, अब आपने इसको डिसाइड करना है बाकी दोनों में. तो थर्ड डेसिमल प्लेस देखने से पहले आप ये चीज़ देख लें कि सेकंड डेसिमल प्लेस में आपके पास 0.64 भी है एंड 0.64 इज 16/25. तो वो सेकंड 16/25 यहाँ पे आ जाएगा. अब आप देखें जी, 0.66 और 0.6666 मीन्स रिकरिंग. Which of them is the greatest? So obviously 2 by 3, the recurring one is the greatest one. तो recurring one हमारा greatest है, तो 2 by 3 आखिर में जाएगा और 66% यहाँ पे आ जाएगा. ये हो गया आपका बेटा असेंडिंग ऑर्डर ऑफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. लेकिन याद रखिए, माइट भी हो सकता है कि इस दफ़ा पेपर सिलेबस चेंज है. एग्जामिनर आपको ये सेम क्वेश्चन दे दे और कह दे राइट दीज नंबर इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द लार्जेस्ट. तो कंफ्यूज नहीं होना, आराम से अटेम्प्ट करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है पेपर में आते हैं. ठीक है, क्वेश्चन 4 की तरफ देखें. क्वेश्चन 4 इंडिसेस है. इंडिसेस को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए याद रखो, पेपर में 2 रूल बड़े, इंडिसेस के 2 से 3 रूल हैं और वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से. Bases are same, add powers. Bases are same, there is division, subtract powers. Power is negative, I can write it as a positive one. So what? Change it into the denominator. So it would be 1 by t cube. That would be the final answer.
1/TQ. Then the examiner is saying square root 6 with a whole square. So square root cancels. So the answer is 6. आपका आंसर जो है यहाँ पे 6 आएगा. तो इस चीज़ को ज़रा अंडरस्टैंड करेंगे दैट हाउ टू अटेम्प्ट अ स्पेसिफिक. देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आपने जो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए ये नो रीड क्वेश्चंस थे और बस डायरेक्ट हमने कर लिया इनको. क्वेश्चन नंबर 5, ये हमेशा पेपर की जीनत होता है ये क्वेश्चन, और वो एग्जामिनर हमेशा आपको कहता है कि a group of people are asked what type of holiday they prefer. The table gives information about the results. Okay. They say that complete the table. You can see that camping is 15 number of people and it is equals to 60 degrees. So I got the idea that, okay, the examiner is asking me to convert everything and post it into the pie chart. And we know that pie chart is the practical application of using a circle. Okay. So circle is what? Part divided by total multiply by 360. That is what the total angle of the circle is, which is 360. बेटा लूप मेथड आपको डेफिनेटली इसको करना चाहिए. ये तो अभी हम यहाँ पे डिस्कशंस पे जा रहे हैं, और ये भी विदाउट रीड क्वेश्चन में ही आता है, क्योंकि याद रखें कि पाई चार्ट के ऊपर और कुछ भी नहीं है. जहाँ पे भी पाई चार्ट आपको नजर आएगा आपने फ़ौरन से लिखना होता है पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई विथ 360. ये आपका एक फॉर्मूला ये होता है, और दूसरा होता है रेशो मेथड. रेशो मेथड क्या चीज़ है? आई एम कंप्लीटिंग द टेबल. आई कैन सी दैट 15 इज इक्वल्स टू 60. सो 45 इज इक्वल्स टू एक्स. दैट इज व्हाट अ रेशो मेथड इज. तो 15 इज इक्वल्स टू 60, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आप लिखते हैं 15x इज इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई विथ 45. X is equals to 60 multiply with 45 divided by 15. We know that table 15 may we have 45. So 15 ones are 15 and 15 threes are 45. So X is equals to 60 times 3 is 180. तो मेरे पास ये एंगल आ रहा है 180 का. ठीक है. अब ऑब्वियस सी बात है, अब आपने क्रूज का एंगल निकालना है तो आप सेम मेथड करेंगे. सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, ये जो मैंने इक्वेशन बनाई हुई है आपके सामने है ये इक्वेशन. ठीक है. तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं एक दफ़ा दोबारा कर देता हूँ. 20 इज इक्वल्स टू एक्स एंड 15 इज इक्वल्स टू 60. 15 इज इक्वल्स टू 60. सिर्फ दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई करें. आपके पास मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो 20 to 60 इज इक्वल्स टू 15x. तो यहाँ पे अब आ जाएगा हमारे पास 20 into 60 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू एक्स. 15 की टेबल में 60 आता है. और 20 into 4 इज 80. तो एक्स इज इक्वल टू 80. तो ये 80 आ गया बेटा. तो जब 20 80 के बराबर है तो क्या 10 40 के बराबर नहीं होगा? यस और नो? 10 इज ऑब्वियसली हाफ ऑफ 80, क्योंकि 20 इज इक्वल टू 80 लिखा हुआ है आपके सामने. अब ये क्वेश्चन जो है ये विदाउट रीड में ही आता है, याद रखें. इसमें कोई इतना वो नहीं है, रॉकेट रूल नहीं है. रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, पार्ट डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360 से भी कर सकते हो. टोटल के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सारे नंबर ऑफ पीपल को ऐड करना पड़ेगा. तो 15 प्लस 45 इज 60. 60 प्लस 20 इज 80. 80 प्लस 10 इज 90. तो आप लिखोगे 45/90 मल्टीप्लाई बाय 360. फिर 20/90 मल्टीप्लाई विद 360. फिर 10/90 मल्टीप्लाई विद 360. तो आप ऐसे टेबल को कंप्लीट करोगे. अब दूसरी बात ये, मैं कल एक बच्चे के साथ पेपर डिस्कस कर रहा था. तो ये एग्जामिनर ने आपके साथ आपके लिए खुद बनाया हुआ है ऑलरेडी ये पाई चार्ट. अब याद रखें ये पाई चार्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पे अलाउड है, क्योंकि इसका जो बड़ा एंगल था ना, इस पाई चार्ट का जो बिगेस्ट एंगल है वो 180 है. अब एग्जामिनर ने यहाँ पे 60 लिखा हुआ है. अब आपकी मर्जी, आप 180 कहीं पे भी लिख दो. ये याद रखो. रिकमेंडेड होता है कि आप स्टार्ट करो विद द ग्रेटेस्ट एंगल, कि आप वो ग्रेटेस्ट एंगल से स्टार्ट करो. तो अगर ग्रेटेस्ट एंगल से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो मेरा पाई चार्ट कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल मैं कहता हूँ 180 हुआ. और 180 किसका एंगल है बेटा? बीच का. दिस इज बीच. बिकॉज एंगल एट अ स्ट्रेट लाइन इज व्हाट इट इज 180 डिग्री. ये 180 डिग्री होता है. ठीक है. फिर इसके बाद हमें दो एंगल और लगाने हैं. एक लगाना है 80 का और एक लगाना है 40 का. तो 80 और 40 का एंगल लगाने के लिए आपने प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करना है. आप प्रोटेक्टर का जो इस्तेमाल करना है पेपर के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है पेपर के अंदर प्रोटेक्टर को इस्तेमाल करना. तो एक मिनट ज़रा मुझे दीजिएगा ताकि मैं यहाँ पे ज़रा प्रोटेक्टर लेकर आ जाऊँ. ज़रा एक मिनट सफ़र करें. अच्छा.
ओके, सबको आई थिंक मेरी स्क्रीन पे प्रोटेक्टर जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। यू कैन सी द प्रोटेक्टर। आपको मेरी स्क्रीन पे प्रोटेक्टर नज़र आ रहा है। मैं इस प्रोटेक्टर के ज़रिए जो है मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा दूं कि आपने यहाँ पे 80 डिग्री का एंगल कैसे मार्क करना है। आपने यहाँ पे इस प्रोटेक्टर को बिल्कुल इस ब्लैक डॉट के ऊपर जो है ना सेट करना है। ये हो गया जी सेट। अब लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे 80 डिग्री को मार्क करना है विद हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। सो 0, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो यहाँ पे ये 80 आ रहा है, तो मैं आई विल मार्क अ डॉट हियर। मैं यहाँ पे एक डॉट लगा दूंगा बायर, बिल्कुल बायर एक डॉट लगाऊंगा, क्योंकि आई एम गोइंग टू रिमूव दिस पिक्चर। मैं इस पिक्चर को यहाँ से भी रिमूव करूंगा। तो मैंने इस पिक्चर को यहाँ से रिमूव करना है। तो इस पिक्चर को मैं यहाँ से रिमूव कर गया। ये मैंने 80 की लाइन लगा दी है, 180 की दोबारा। एंड दिस पॉइंट इज 180 अकॉर्डिंग टू द प्रोटेक्टर। दिस पॉइंट इज 80 डिग्री। तो ये हो गया बेटा 80 डिग्री, ये हो गया बेटा 40 डिग्री। अच्छा, 80 डिग्री था हमारे पास क्रूज, और इससे नीचे है हमारे पास हाइकिंग। कोशिश करें कि स्टार्ट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट एंगल से स्टार्ट करें। अब यहाँ पे एक चीज़ अंडरस्टैंड ज़रूर करें, क्योंकि एग्जामिनर ने खुद 60 से स्टार्ट किया था। एग्जामिनर को स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए था। अगर स्टार्ट करना भी था तो एग्जामिनर को 180 से स्टार्ट करना चाहिए था, एक स्ट्रेट लाइन देता। अगर इफ द पाई चार्ट इज ब्लैंक, तो यू शुड बी स्टार्टिंग विद द ग्रेटेस्ट एंगल। सबसे बड़ा एंगल जो है आपने स्टार्ट करना है फ्रॉम द राइट साइड और फ्रॉम द लेफ्ट साइड। राइट या लेफ्ट, दोनों में से किसी से भी स्टार्ट करो, लेकिन कोशिश करो राइट से स्टार्ट करो और ग्रेटेस्ट एंगल से स्टार्ट करना। लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर ने खुद कैंपिंग का एंगल खुद लगाया हुआ है, तो वी वर ओपन कि हम लोग इसको ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कर सकते थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट इज a laptop costs $800 in a sale. The cost is reduced by 15%. Work out the cost of the laptop in the sale. Let's suppose I went to any specific shop to buy something for myself, and it's written 15% off. It means that whatever I buy today, I'm going to pay 85%. To work out the cost of the laptop in the sale, obviously, I'm going to pay 85% of the laptop. So 800 multiply with 85%, which I am going to pay. That is what the working of this question is. It's not a rocket science question. अगर वो कहता कि work out the cost of reduction, so I would have multiplied 800 multiplied with 15 by 100. अगर वो कहता कि व्हाट इज द डिस्काउंट गिवन टू यू, तो फिर भी मैं लिखता 800 मल्टीप्लाई बाय 15 बाय 100। वो कह रहा है वर्क आउट द कॉस्ट ऑफ द लैपटॉप इन द सेल, कि कितनी लैपटॉप की सेल के अंदर क्या कॉस्ट पड़ रही है आपको। तो 85% मुझे कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है। तो जीरो जीरो करते हैं, जीरो जीरो कॉट किया। तो 8 into 85, यहाँ पे एग्जामिनर चेक करेगा मल्टीप्लिकेशन स्किल्स, कि आपके मल्टीप्लिकेशन स्किल्स क्या हैं। अब याद रखें, हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ एडिशन मल्टीप्लिकेशन रखा करें। मैं लिखता हूँ 80 + 5। इससे ज़रा आपको वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। 8 8 = 64, तो ये आ जाएगा 640 प्लस 8 5 = 40। तो 640 + 40 इज 80। तो इट्स 680। तो ऐसे मेथड्स को इस्तेमाल करें तो आपके लिए इजी रहेगा। अभी वो अगर वो एक क्वेश्चन में कहता ना आरोम कि वर्क आउट द डिस्काउंट अमाउंट, तो आई वुड हैव मल्टीप्लाइड द सेम 800 विद 15 बाय 100 ओनली। सर। यप। सर आप P2 करवा रहे हैं? ये नॉन कैलकुलेटर है जी, बिल्कुल। सही। वर्कआउट, ऐसे क्वेश्चन में गलती बहुत कॉमन है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि इतना आसान सवाल इस दफा पेपर में आएगा। ये याद रखें, क्योंकि थोड़ा सा एग्जामिनर ट्रिक करेगा चीज़ों को, और एग्जामिनर का काम ही यही है कि वो आपके लिए चीज़ें थोड़ी बहुत ट्रिकी करे। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन एट ऑल इन दिस कमिंग May June examination. The question can change itself. How? See, 3/4 plus 5/6. Comparing denominators. ये क्वेश्चन कोर वालों के पेपर में आ सकता है, ये आम बच्चों के पेपर में नहीं आएगा। डिनोमिनेटर को सेम कर लें या बटरफ्लाई मेथड इस्तेमाल कर लें, दोनों में से 6 3 = 18, 6 4 = 24,
5 4s are 20, 6 4s are 24, डिनोमिनेटर सेम हो गया, 18 + 20 is 38, 38/24, दोनों इवन नंबर है तो दोनों को आप ऐड कर सकते हो, कटिंग हो सकती है 2 में, 38 का हाफ इज 19 एंड 24 का हाफ इज 12, 19/12 इज नॉट अ मिक्स नंबर, गिव योर आंसर एज अ मिक्स नंबर। तो मिक्स नंबर में आंसर देने के लिए आपके पास अब 3 सर्कल्स होते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा अभी अपने आप को फटीग में डालने की ज़रूरत नहीं है। आपका डिनोमिनेटर एज इट इज़ नीचे 12 आ जाएगा, 12 के टेबल में 19 नहीं आता, तो 12 वंस आर 12 एंड 12 ones are 12 and 12 plus 7 is 19. So 1 into 7/12 is the answer, which was the part of previous examination. I can expect a question from examiner like this for this May June. हम इस मई जून में कुछ इस तरह की एक्सपेक्टेशन एग्जामिनर से रख सकते हैं, जो कि वो नॉन कैलकुलेटर में देगा आपको, और अगर आप दे दे तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा, आपकी वर्किंग आसान हो जाएगी। यू कैन एक्सपेक्ट दिस ईयर 2/5 plus 0.72 रिकरिंग। अब जरा यहाँ पे नोट करें कि एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन दे सकता है पेपर में कि एक फ्रैक्शन के साथ एक रिकरिंग डेसिमल ऐड हो रहा है, तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस रिकरिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन फर्स्ट एंड देन यू कैन प्रोसीड विद द क्वेश्चन। और फिर आपने क्वेश्चन को प्रोसीड करना होगा। Do you think that this year the paper will be difficult for IGCSE? I don't think so. That I think that the paper will be easier than the ones we are practicing now in our yearly booklets. Okay, that is what my prediction is, because we are practicing a very difficult papers right now in IGCSE paper 4। हम बहुत difficult papers attempt करते हैं। आप 130 मार्क का पेपर जो है वो 2 घंटे में अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि पेपर 130 मार्क्स का हो 100 मार्क्स का होगा। 2/5 plus 0.72, how to convert this 0.72? व्हाट अबाउट ओ लेवल्स पेपर? ओ लेवल्स पेपर का भी बेटा ऐसा ही होगा। ओ लेवल्स वालों का पेपर, ओ लेवल्स के पेपर में सिर्फ इतना चेंज आने वाला है कि पेपर 180 से 20 मार्क्स ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ओ लेवल्स के अंदर भी अगर किसी बच्चे का नॉन कैलकुलेटर पेपर भी अच्छा है ना, तो वो भी अब अच्छे मार्क्स ले सकता है। ठीक है, तो मतलब वो जो बाज़ औक़ात किसी बच्चे के नॉन कैलकुलेटर पेपर अच्छा होता था लेकिन उसका कैलकुलेटर वर्जन अच्छा नहीं होता था, तो वहां पे वो नॉन कैलकुलेटर की वजह से भी उसका ग्रेड अच्छा आ जाता था। लेकिन अब क्योंकि दोनों का वेटेज 50-50 हो गया है, दोनों के 100 मार्क्स हैं, तो अब स्टूडेंट को खुद लेने पड़ेंगे। लेट सपोज अगर आप पहले ओ लेवल्स में 80 में से 80 मार्क्स लेते थे, तो आपके टोटल में वो 100 आउट ऑफ 100 काउंट होते थे। अब आपको 100 में से 80 खुद लेने होंगे। अंडरस्टूड और नॉट? So let's suppose, let me convert this 0.72. So this 2 is repeating, so that is the reason I wrote 3 times. मैंने 3 दफा लिख दिया। How many digits are repeating? There is only one digit is repeating, so I'm multiplying both sides with 10. So 10x is equals to 7.2222। किसी को नहीं आता तो जाके मेरे यूट्यूब पे सीखो। यहाँ पे अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। 2 - 2, 2 - 2, 2 - 2, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 2 में से 7 नहीं जाता तो ये 6, तो यहाँ पे अगर 12 में से 7 गया तो आता है हमारे पास 5.6। सो ये आ जाएगा 9x। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6.5/9। और ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा बेटा 65/90। अच्छा, 65/90 जो है ये हमारे पास ऐसा नंबर है कि जिसके अंदर हम लोग इसको एज इट इज़ वहाँ पे लेके जा सकते हैं। फ्रैक्शन बन गया प्लस 65/90। अब बस आप देख सकते हैं कि 0.72 को कन्वर्ट किया है मैंने, तो 2/5 जो है 5 को 90 बनाया जा सकता है। 5 टाइम्स व्हाट इज बेटा 90। 5 के टेबल में 90 कब आता है? कॉमन सेंस लगाएं, 18 में आता है कि नहीं? 5 times 18 is 90 or not? So multiplying 18 here intentionally. 18 times 2 is 36 divided by 90 plus 65 divided by 90. The denominator is same. 65 plus 36. So 65 plus 36 is 101. Yes or no? So 101 divided by 90 cannot be simplified. Why? Because this is what the final answer is. So this is the extra thing I practiced here. That is what my prediction is. That आपको question is दफा कुछ ऐसे मिलेंगे। फिर वो कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन 8 देख लें। Sophia walks at an average speed of 4 kilometer per hour. Work out the time Sophia walks takes to walk 13 kilometer.
बेटा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. Speed is 4, distance is 13, and the time is not given. So time is equals to 13 by 4. That is not the requirement of the question because you have to give your answer in hours and minutes. So let's divide this thing. हम इसको अभी divide करना पड़ेगा. So first of all, multiply with 60. तो 60 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऑटोमेटिकली आई विल गेट द आइडिया दैट हाउ मच इज द आंसर. So that is 13 by 4. I have to convert this into minutes. तो multiply with 60 करके देखते हैं. या अगर आपको ये टेक्निक मुश्किल लगती है तो ये आप ये भी कर सकते हैं कि 13 को अंदर रखो और 4 को बाहर ले जाओ. ठीक है. तो हम यहाँ पे करते हैं 4 इंटू 4 3 ज़ा 12. तो आ जाएगा ऊपर 3, नीचे आ गया 1, पॉइंट लगा के 0 दिया आपने. तो ये आ जाएगा बेटा 4 2 ज़ा 8. 4 2 ज़ा 8. तो ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 8. ऊपर आ गया 3.2, नीचे आ गया फिर 2, एक 0 लगा दो. 4 5 ज़ा 20. तो ये आ गया 20. तो खत्म. 3.25 आवर्स. तो ये है बेटा 3.25 आवर्स. क्वेश्चन कह रहा है कि यू हैव टू गिव योर आंसर इन मिनट्स. अब यहाँ पे बहुत कॉमन मिस्टेक है. पेपर में बच्चे लिख देते हैं 3 hours 25 minutes. दिस इज रॉन्ग. 3 hours इज करेक्ट, बट दिस इज 0.25 आवर. And 0.25 of hour means multiply with 60. So 0.25 multiply with 60 means 25 by 100 multiply with 60. तो अब आप इसको 0 0 से कैंसिल करो. 25 को टाइम 6 करते हैं तो 150 आता है. 150 डिवाइड बाई 10 करते हैं तो 15 आता है. तो 0.25 ऑफ आवर जो है वो 15 मिनट्स बनता है. तब जाके दो नंबर मिलेंगे इफ यू हैव करेक्ट आवर्स और करेक्ट मिनट्स. ठीक है. आगे चलते हैं. पैटर्न का क्वेश्चन पेपर के अंदर होता है. पैटर्न्स के ऊपर प्रैक्टिस जो है ना वो ऑटोमेटिकली करें. इसके ऊपर मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगा. सर इफ दिस वाज अ कैलकुलेटर सो वी कुड हैव कन्वर्ट टू टाइम विद द कैलकुलेटर, राइट? यस, अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो फिर तो बहुत ही इजी सीन होता है. 3.25 लिखें, इक्वल दबाएं और टाइम का बटन दबा दें. जी क्लियर है बच्चे सबको? अच्छा. पैटर्न नंबर 1, पैटर्न नंबर 2 और पैटर्न नंबर 3 बना हुआ है. पैटर्न नंबर 4 बनाना है. पैटर्न नंबर 1 देखना सर. 3 क्रॉस 4 क्रॉस 5 क्रॉस. लेट्स ड्रॉ 6 क्रॉसेस. 1 2 3 4 5 6. 2 क्रॉसेस 3 4. तो इसका मतलब यहाँ पे 5 होने चाहिए. 1 2 3 4 5. ओके. बाकी सारे सर्कल्स बनाने हैं लाइक दिस. अब ये नो रीड था, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं. कंप्लीट द टेबल फॉर पैटर्न 4 and 5. तो पैटर्न 4 and 5. सो लुक एट दिस. इट्स 4. 4 + 2 6. 6 + 2 is 8. 8 + 2 is 10. 10 + 2 is 12. अच्छा नेक्स्ट देख लें. 2. 2 + 4 is 6. 6 + 6 is 12. तो यहाँ पे डिफरेंस के अंदर 2 ऐड हो रहा है. तो 12 + 8 is 20 and 20 + 10 is 30. तो डिफरेंस में भी 2 ऐड होता जा रहा है. सर डू वी नीड टू हैव इक्वल नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन द पैटर्न्स? नहीं यार, जरूरी नहीं है. ये भी कोई इतना जरूरी नहीं है. हाँ ये है, अगर फॉर एग्जांपल ये जैसे आपने एक बात की है ना कि यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं तो वहाँ पे भी 3 3 बॉक्सेस के बाद है तो यहाँ पे भी आपको 3 बॉक्स के बाद बना लो तो अच्छी बात है. लेकिन अगर आप ऐसे ही बना रहे हो तो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पैटर्न 1 2 3 को इतनी इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है. अगर आपने थोड़ा इधर भी बनाया हुआ है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. ठीक है, ये इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. हाँ अलबत्ता ये है कि आपका पैटर्न कुछ ऐसा ही दिखना चाहिए. द एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ क्रॉसेस इन पैटर्न n is 2n + 2. नंबर ऑफ क्रॉसेस का फॉर्मूला इज गिवन. फाइंड द नंबर ऑफ क्रॉसेस इन पैटर्न 35. तो 2 × 35 is 70. 70 + 2 is 72. दैट्स इट. ये तो 72 आ गया. Find an expression for the number of circles in pattern n. तो number of circles the expression is 2 6 12 20 30. फॉर्मूला निकालना है और दो नंबर है बेटा, दो से ज्यादा नहीं. तो जरा थोड़ा सा आराम से गौर करना. कुछ भी इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है. आराम से समझोगे तो इजी हो जाएगा. ठीक है. दोनों के दरमियान में देखें, ये फर्स्ट डिफरेंस है यहाँ पे +4. ठीक है.
यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 8, यहाँ पे है 10. यहाँ पे second difference is same. It means that it is a quadratic sequence. So this is an square plus bn plus c. So the value of a is second difference divided by 2. So that is 2 divided by 2 is 2. So I got the idea. Sorry, 2 divided by 2 is what? My bad. So this is n square. So I got this idea that this is n square. Before doing any working, I'm just checking one thing. 1 square is 1 and 1 plus 1 is 2. Okay. 2 square is 4 and 4 plus 2 is 6. Okay. 3 square is 9 and 9 plus 3 is 12. Okay. 4 square is 16 and 16 plus 4 is 20. It means that my formula is n square plus n. That's it. That is what the formula is. समझ आया बेटा कि नहीं? 2 मार्क्स के लिए इतनी वर्किंग मोर देन इनफ है. कोई टेबल वेबल बनाने की जरूरत नहीं है. सो द फॉर्मूला इज, बिकॉज आपने यहाँ पे चेक कर किया, क्योंकि वंस आपके पास अब्बास अगर ये आ गया ना, अब आप यहाँ पे जरा चेकिंग शुरू कर देना. नॉन कैलकुलेटर में स्पेशली 2 से 3 नंबर के लिए इतना वर्किंग करने की जरूरत नहीं. पढ़ाता मैं बहुत ज्यादा हूँ, लेकिन फिर जब पेपर में क्वेश्चन होते हैं ना तो वो आसान होते हैं. आप चेकिंग जरूर कर देना. 1 स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, 2 स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 2, 2 स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 2 इज 6. फिर आप लिखो 3 स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 3 देखो 12 आ रहा है, थर्ड नंबर पे 12 लिखा हुआ है. सो माय फाइनल आंसर इज n स्क्वायर प्लस n. दैट इज व्हाट माय फाइनल आंसर इज फॉर 2 मार्क्स. आई होप सबको समझ आएगा. आगे चलिए जी. स्केल ड्राइंग 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 2.5. फाइंड द एक्चुअल रेडियस ऑफ द स्टेट. अच्छा ये नहीं है, अभी हमारा लोकी हमारा जो है ना सिस्टम से आउट है, तो हम लोग ये नहीं फाइंड कर सकते, तो ये क्वेश्चन हम आउट कर देंगे इस टाइम के लिए. ठीक है. फैक्टराइज देखिए जी. फैक्टराइज निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक कॉमन आउट. कॉमन निकालना सबसे पहले ज़रूरी है. तो याद रखें फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन का नंबर अगर 2 है ना, तो या तो वो थर्ड आइडेंटिटी होगा और या उसमें कॉमन 2 होंगे. ये याद रखें. अगर एक कॉमन हुआ ना तो यू विल गेट ओनली 1 मार्क क्वेश्चन. यू कैन सी दैट आई हैव 2 कॉमन्स हियर. 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो ये आइडिया हो जाता है. एक 2 कॉमन है, एक m कॉमन है, तो अंदर आ जाएगा बेटा 2m माइनस 7. अगर आपने इसमें सिर्फ m को कॉमन निकाला तो एक नंबर मिलेंगे, और आप क्वेश्चन देख लो यहाँ पे 2 नंबर है. तो यहाँ पे मेरा बेटा ये चीज क्लियर होना चाहिए कि जब क्वेश्चन के नंबर जैसे होते हैं ना तो ये क्लियर होना चाहिए आपको. हियर इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स. राइट डाउन द नंबर इन द लिस्ट दैट इज इररेशनल. पहली बात ये है कि इसमें नंबर कितने हैं ये तो पता होना चाहिए आपको. नंबर कितने हैं पहले नंबर देख लें जरा. इसमें नंबर्स हैं कितने. 1/3 इज फ्रैक्शन, इट इज नॉट अ नंबर, तो इट्स आउट. स्क्वायर रूट 4 इज अ नंबर, यस ये भी एक नंबर है. 2 पावर 0 इज नॉट अ नंबर, ये नंबर नहीं है. ठीक है, ये इंडेसिस की बात हो रही है यहाँ पे. अच्छा. स्क्वायर रूट 5 इज अ नंबर, यस इट्स अ नंबर. 10/8 is a fraction, it is not a number. And 2 power minus 1, it is also not a number, it is written in the form of a indices. Technically I have 2 numbers here. नंबर ही 2 है मेरे पास. 2 के अलावा तो मेरे पास कोई नंबर ही नहीं. तो स्क्वायर रूट 4 कभी भी रैशनल रैशनल नंबर है, और स्क्वायर रूट 5 इज इररेशनल बिकॉज स्क्वायर रूट 5 का आंसर होगा 2 पॉइंट समथिंग. आप नहीं लिख सकते इसको. दैट इज व्हाट स्क्वायर रूट 5 आंसर इज. सो दैट्स हाउ यू शुड बी सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर थिंग. रट्टे ना लगाएं, कॉन्सेप्ट पढ़े, कुछ भी नहीं है. सर आई डिडंट गेट दिस. बेटा एक चीज अंडरस्टैंड करें. तो वो कहते हैं हियर इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स. राइट डाउन द नंबर इन द लिस्ट दैट इज इररेशनल. पहली बात तो ये है कि यहाँ पे अंडरस्टैंड जरूर करें. मैथ्स में अगर आपको, अच्छा देखें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें. मैथ्स में आपको पता है कि 1/3 के लिए देयर इज अ टर्म यूज फ्रैक्शन. एग्री और नॉट? यस और नो? ओके, थैंक गॉड. नाउ द एग्जामिनर इज आस्किंग मी राइट डाउन द नंबर. फ्रैक्शन इज नॉट अ नंबर. ओके, कीप वन थिंग इन माइंड. एनी प्रॉब्लम? ओके. बेटा 2 power 0 is equals to 1, but 2 power 0 is not a number. Okay, it's a index form of a particular question. Do you agree? Okay, now listen to me very carefully. Why? You can see that 10/8 is a fraction, so that is the reason it is out. 2 power minus 1 is written in the form of a index, it is out. Now you can see one thing.
that I am left with only two things, which is square root 5 and square root 4. Why I said that square root 4 is what, a rational or irrational number, and why I circled it that it's a number, because we have studied one thing which is written in the syllabus, the rational number. And for rational numbers, we said that they are in the form of a square root. Agree or not? So that is the reason I wrote a circle on that. Any problem? Okay, now you can see that square root 4 is equals to 2, but square root 5 is 2 point something, which we cannot write in a form of a particular fraction. So that is the reason square root 5 is a particular answer. Evaluate. Most common question for non-calculator paper. 5 times 10 of 10 power 7 minus 8 multiplied by 10 power 6. It's plus minus. So take common out. Okay? Take common out. Take common out. There are two digits. This is term 1 and this is term 2. It's a subtraction. 10 power 6 is common. Okay. So 10 power 6 is out. So 5 is left with 110 and 8 is left with nothing. So we know that in maths we have to multiply first. 5 tens are 50. 50 minus 8 is 42. 42 multiplied by 10 power 6. 42 is not a standard form. 42 can be written as 4.2 multiplied by 10. Agree everybody or not? So 4.2 multiplied by 10 power 7. So that is what the final answer is. Understood everybody or not? समझ आया बच्चा कि नहीं? Agree? Yes लिख दो या thumbs up कर दो कम से कम यार. Okay. Proceed. Okay, question देख ले बेटा. 120 prime factorization given, 126 the prime factorization is given, the LCM of 120 and 126 is also given. Okay, write 2520 as a product of its prime factor. Okay, तो बड़ा आसान सा सवाल है. 120 it is equals to 2 cube times 3 times 5. 126 is equals to 2 times 3 square times 7. LCM is taking highest powers, taking highest powers in index form. So both of you can see that 2 cube is highest. 2 cube is highest instead of 2. 3 square is highest instead of 3. And 5 is highest and 7 is highest. So that is what the answer is. So take highest powers only. Understood, Rami? Understood everybody or not? Okay. Each interior angle of a regular polygon is 160. Okay, my interior is 160. My exterior would be 20 because interior plus exterior is 180. Find the number of sides of this polygon. Okay, exterior is equals to 360 by n. So n is equals to 360 divided by 20. So 360 divided by 20 is what? 0, 0 cancel. So 36, half of 36 is 18. 18-sided polygon will have interior angle 160, exterior 20. Any problem, anyone? सर बेटा प्रॉब्लम जी बेटा. सर ये एक इंटीरियर एंगल का वो है ना 160 जो है वो एक इंटीरियर एंगल है मतलब बेटा एक साइड का एंगल है। एक साइड का नहीं, पहली बात तो ये इंटीरियर एंगल के ऊपर थोड़ी सी समझ डाल लें आप, ठीक है? इंटीरियर एंगल क्या है? इंटीरियर एंगल किसी भी शेप के अंदर जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं ना, उनकी बात हो रही होती है. वो क्वेश्चन में कह रहा है कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 160, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर जो है ना वो 180 के बराबर आता है, ठीक है? तो एक्सटीरियर का फॉर्मूला इजी है, आप ये 18 इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो. यू कैन ऑल्सो यूज द फॉर्मूला अब्बास. जी जी। आप यहाँ पे ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, n माइनस टू इंटू 180 डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू 160. एग्री? यस। लेकिन दिस फॉर्मूला स्केरी, थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को, वरना अदरवाइज ये भी वैसे ही आएगा. देख के देख लो जरा. 180n माइनस 360, ये n जाके उधर 160 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब इसको इधर ले आओ.
180 एन माइनस 160 एन इज इक्वल टू प्लस 360। ये हो गया बेटा 20 एन इज इक्वल टू 360। जीरो जीरो काटो, एन इज इक्वल टू 36/2, वही 18 नहीं आ रहा। अब बस बिल्कुल आ रहा है। आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जब भी इंटीरियर गिवन हो, एक्सटीरियर निकाल के नंबर ऑफ साइड्स निकाल लेना। नंबर ऑफ साइड्स गिवन हो तो इंटीरियर एक्सटीरियर निकाल के इंटीरियर निकाल लेना। समझ आइए? ओके ओके आसान आसान अप्रोच लेंगे तो गलती नहीं करेंगे, बस दैट इज व्हाट द स्टोरी इज। सर। ट्रांसफॉर्मेशन, मेरे बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन को देखो। शेप ए शेप बी, दो आपके पास शेप्स बनी हैं। ड्रॉ द इमेज ऑफ शेप ए आफ्टर ट्रांसलेशन बाय द वेक्टर। 3 का मतलब है 3 राइट, और -5 का मतलब है 5 डाउन। अब्दुल बासित, आपको मेरी आवाज आ रही है बच्चे कि नहीं? ओके, सो ट्रांसलेट करना है शेप ए को। तो शेप ए इज 3 राइट एंड 5 डाउन। अब्बास, जी सर। बेटा क्लास में उबैद है। मैं चेक करता हूँ। 3 राइट एंड 5 डाउन। हेलो सर। हाँ भाई, यू बचा। So you ठीक translated सर, this one आपके। point. Yeah, you translated this one point. Now draw the rest of the shape. So this one, Ramin, 1, 2, 3, 4. This one, this one, this one, this one. कैम्ब्रिज में आपने हैंड से शेप नहीं ड्रॉ करनी, ठीक है? तो ये आपने करना है, इसको इस तरह ड्रॉ, ऐसे, लाइक दिस। आपने रूलर से ड्रॉ करना है। मेरे पास तो यहाँ पे फैसिलिटी है, मैं इसको लाइंस को सीधा मीधा कर सकता हूँ। तो आप लोगों ने रूलर से ड्रॉ करना है, ठीक है? अंडरस्टूड? ओके, देन डिस्क्राइब फुली सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट शेप ए, दैट मैप शेप ए ऑन टू बी। मैं देखता हूँ लोग पता नहीं कौन कौन से 3 नंबर के लिए कौन सी रॉकेट साइंस के तरीके सिखा रहे होते हैं रोटेशन के। यार रोटेशन अगर आपको 3 नंबर के लिए आएगी, या इनलार्जमेंट 3 नंबर के लिए आएगी, तो आपने बस ये 2 लाइनों के अंदर उसका करना है। इतना नहीं करना कि ये पूरा पर्चा भर दो वर्किंग करते करते, ठीक है? तो ए ऑन टू बी, ए ऑन टू बी इज रोटेशन, 1 नंबर मिल गया। इट्स अ 90 डिग्रीज रोटेशन, क्योंकि शेप हॉरिजॉन्टल थी अब वर्टिकल हुई। अगर हॉरिजॉन्टल दोबारा हो जाती तो 180 था, 90 डिग्री। अब क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? इस फेस से पता लग रहा है कि ये फेस राइट साइड पे गया हुआ है, तो ये क्लॉकवाइज हुई है, ठीक है? बस, तो 2 मार्क्स की आपके पास हो गई वर्किंग। अब आपने ड्रॉ करना है इसका सेंटर। अब सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा बेटा? सेंटर ऑफ रोटेशन के लिए आपने एल ड्रॉ करना होता है, क्योंकि यू नो दिस ऑलरेडी दैट 90 डिग्री इज राइट एंगल, एंड राइट एंगल इज व्हेन टू लाइंस दे इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, एंड द लेंथ ऑफ दीज टू लाइंस शुड बी सेम। ये सेम होने चाहिए, इस तरह सेम होने चाहिए। जब इस तरह सेम होंगे तो हमें एक एल ड्रॉ करना है। सेलेक्ट 2 पॉइंट्स ऑफ योर चॉइस, अपनी मर्जी के 2 पॉइंट सेलेक्ट करो। मैं अपनी मर्जी के 2 पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ। शेप मैंने बहुत जूम इन कर दिया है ताकि आपको सबको समझ आए। सर हम ट्रेसिंग पेपर ले जा सकते हैं फॉर रोटेशन? बेटा ट्रेसिंग पेपर आप फॉर द सेफ साइड लेके जा सकते हैं, ठीक है? आप अपने पास एक छोटा सा ट्रेसिंग पेपर अपने पास रखो, जिसको हम बटर पेपर बोलते हैं, ठीक है? अपने साथ ले जाएं, नो प्रॉब्लम। इसके ऊपर आपको पेपर से निकालेंगे नहीं, ठीक है? और उस ट्रेसिंग पेपर के ऊपर आप अपना नाम लिख दें ऊपर कॉर्नर पे कि ये मेरा है, ठीक है? दूसरी बात ये कि आपने एग्जामिनर से रिक्वेस्ट करनी है, जब भी आपको ये ट्रेसिंग पेपर मिलता है, ठीक है, क्वेश्चन आता है इस तरीके का, तो आपने एग्जामिनर से रिक्वेस्ट करनी है कि जी पेपर में यू मे यूज द ट्रेसिंग पेपर का लाइन लिखा हुआ है फ्रंट पेज पे, तो आई कैन यूज माई ट्रेसिंग पेपर। इफ आई एम नॉट अलाउड टू यूज माइन, सो प्लीज ब्रिंग मी द ट्रेसिंग पेपर। अगर उनके पास होगा तो वो दे देंगे, अगर नहीं होगा तो आपको कह देंगे कि आप यूज कर लो, ठीक है? लड़ने की जरूरत नहीं है, कोई बच्चा लड़ेगा नहीं, ठीक है? एग्जामिनर के साथ बहुत अच्छा बिहेव करने की जरूरत होती है, ठीक है? अच्छा, सेलेक्टिंग 2 पॉइंट्स, मैंने 2 पॉइंट्स को सेलेक्ट किए। अब मैं यहाँ पे एल बनाना चाह रहा हूँ। अब एल में बनाना चाह रहा हूँ तो देखो, इसको कोई एल नहीं कहता, ये कोई एल नहीं होता, एल की ये शेप ही नहीं होती। अब आपने पेंसिल रख रख के देखना है। ओके यार, ये एल लगता है थोड़ा सा,
एल शेप बन रही है थोड़ी सी, इसको ड्रॉ करके देखते हैं। इस पॉइंट को इधर ले गया और इस पॉइंट को इधर ले गया। अच्छा, वाई दिस इज एल, ये एल क्यों है? बिकॉज बेटा दिस इज, देखो ये ट्राइंगल बन रहा है, ये 2 और 1 है, और ये भी देखो 2 और 1 है, तो डेफिनेटली ये हाइपोटेन्यूस है आपकी, और ये दोनों लेंस बराबर होनी चाहिए हमारे राइट एंगल में। आई गॉट माई सेंटर, ये मेरा सेंटर है, विच इज एक्स इज इक्वल टू 4 एट वाई इज इक्वल टू 1। ईजी टेक्निक है बहुत, 1 से 2 सवालों के ऊपर प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह जल्दी सीख जाओगे। रुशान बच्चे क्या मसला है यार, तुम बार बार लीव हो जाते हो फिर ज्वाइन करते हो। ये हो गया जी क्वेश्चन 15। क्वेश्चन नंबर 17, इनइक्वालिटीज होंगे, ट्राइंगल शेड है। The diagram show the shaded triangle ABC drawn on a 1 centimeter square grid. The equation of line AC is given. Okay. So I can see that this line is given to me, which is y is equals to negative 3 by 2x plus 1. Okay. This line is also very much easy because the line is passing from x is equals to 4. So I can name this line x equals 4. And this line is y equals minus 3 over 2x plus 1 given in the question. This was given in the question. The shaded region inside triangle ABCD is defined by the three inequalities. One of these is already mentioned. So what are the other two? So one is, ये देखें जी, ये triangle left side पर है, so it is lesser than or equals to 4, x is lesser than or equals to 4, ये lesser than or equals to 4 हो गई। एक मिनट, एक मैसेज आया सर, can you show the L method once again because I draw with compass। compass वाला मेथड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सही नहीं लग रहे होते, फिर वो सही जगह पे मैच नहीं कर रहे होते, तो मैं आपको ये दोबारा सिखाता हूँ, थोड़ी देर सब्र करें, ठीक है? बल्कि आपको किसी और वीडियो में सिखा दूंगा, और अगर नहीं तो मेरा रोटेशन का लेक्चर है यूट्यूब पे देखना, ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 2, जिसमें रोटेशन का पूरा मैं पास पेपर कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने ये एल जो है ना बहुत दफ़ा ड्रॉ किए हैं बहुत क्वेश्चंस में, ठीक है? मनाहिल, डे कॉपी दैट, ओके, यू हैव टू ट्राई एंड देन यू हैव टू अपडेट मी टिल टुनाइट, ओके? अच्छा, we have to give another inequality as well, and another inequality obviously, where is this line? Do you agree with me or not? So beta, we know that in maths we have y equals mx plus c. You can see that this line is passing from 1 as well. So I got the idea that this is y is equals to mx plus 1. All I need is the value of m, which is my gradient. ये मेरा gradient निकालना है मुझे, ठीक है? So sir, x is equals to 0 and y is equals to 0 lines are which one on graph? Okay, okay, मैं सिखाता हूँ यार आपको, इतना मुश्किल नहीं ये चीज़। अच्छा, पहले ये ग्रेडियंट देख लो बेटा, लाइन ए बी का ग्रेडियंट निकालना है, तो आपके पास दो तरीके हैं ग्रेडियंट निकालने के। राइज बाय रन करो तो बहुत आसान है, ठीक है? तो ज़रा यहाँ पे देख लो, मैंने छोटा सा ट्राइंगल बनाया, रन और राइज, तो 1/1 is 1, तो ग्रेडियंट इज 1, m इज इक्वल्स टू 1/1, तो विच इज़ 1, पॉजिटिव ग्रेडियंट है। तो y इज इक्वल्स टू 1x+1, इसको हम कहते हैं y इज इक्वल्स टू x+1। सो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी जो है वो y इज इक्वल्स टू x+1 है, एंड दिस रीजन इज लोअर देन दिस लाइन, सो आई हैव टू राइट y इज लेस देन और इक्वल्स टू x+1। तो ये हमारा थर्ड इनइक्वालिटी हो गया जो हमें यहाँ पे लिखना है, y इज लेसर देन और इक्वल्स टू x+1। बेटा हमने आपने एक बात पूछी है मुझसे कि ये देख लें बेटा, दिस इज एक्स एक्सेस, और एक्स एक्सेस की जो इक्वेशन होती है मैथ्स में वो होती है वाई इज इक्वल टू जीरो, और वाई एक्सेस की इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि वाई एक्सेस पे एक्स हमेशा जीरो होता है और एक्स एक्सेस पे वाई हमेशा जीरो होता है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर, या ओके। वर्क आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, चलो जी, 2 मार्क्स के लिए नॉन कैलकुलेटर में याद रखो, एरिया का फॉर्मूला हमेशा यही इस्तेमाल करना है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही फार्मूला इस्तेमाल करना है, इसके अलावा दूसरा फार्मूला इस्तेमाल नहीं करना नॉन कैलकुलेटर में, और इनइक्वालिटी में तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। इनइक्वालिटी में कभी भी एरिया ऑफ ट्राइंगल मांगे यही फार्मूला होना चाहिए। ट्राइंगल को देखिएगा ऊपर, इस ट्राइंगल की बेस और हाइट निकालते हैं, और यार इस ट्राइंगल की बेस और हाइट बड़ी आसान है। इसको तो बेस हम नहीं बोल सकते, ये स्लांट में है, इसको भी बेस नहीं बोल सकते, ये भी स्लांट में है, लेकिन ये स्लांट नहीं है। सो दिस इज बेस और हाइट ऑफ द सर ट्राइंगल इज, अगर हम इस ट्रायंगल को 2 में डिवाइड कर देते हैं
हाँ कर देना, वो भी कर दें, वो डिफिकल्ट हो जाएगा थोड़ा सा, और कुछ भी नहीं अच्छा होगा, ठीक। लंबा हो जाएगा थोड़ा सा। तो देखो जी, ये बेस हो गई आपकी, और इस ट्राइंगल की ऊंचाई ये है। एग्री? आप में से कोई भी नहीं कह सकता कि ये इसकी हाइट है। हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज दिस वन। ये इतना ऊंचा ट्राइंगल है। एग्री? सो बेस कितनी है यहाँ पे? यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट 7 है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट है -5। तो 7 और 5 को ऐड करो तो 12 आता है। बेस इज 12 एंड द हाइट इज 4 यूनिट्स। सो 1/2 into 12 into 4. So 2 ones are 2, 2 twos are 4, तो 12 twos are 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। अंडरस्टूड? समझ आया बेटा सबको कि नहीं यार? समझ आया मेरा बच्चा सबको? यस चले सर। जी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम। यार रुशान, ये एनोटेशन तो ना करो ना यार, ये लकीरें मारने की कोई जरूरत नहीं है मेरी स्क्रीन के ऊपर। डिलीट करें, डिलीट करें अपनी एनोटेशंस। ठीक है? ये आई आई बिलीव कि आप लोग को पता नहीं था। सर बेस कैसे ली? मेरा बेटा बेटा रामीन जरा देख लो बेटा, रामीन देखिएगा, ये ट्रायंगल आपके सामने है ना, लेट्स अज्यूम कि ये ट्रायंगल, आप पेपर को, आप अपने सामने पेपर को कुछ इस तरह रख लो। एग्री? अपने सामने पेपर को ऐसे रखो कि ये बी सी लाइन जो है, ये आपके सामने हॉरिजॉन्टल हो जाए। ठीक है बेटा? ठीक है रामीन? जी सर। जब हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो ये बेस नजर आएगी आपको। ठीक है? जी। तो ये बेस आपने, मैंने इसकी लेंथ काउंट की है तो 12 यूनिट बनते थे। और हाइट मैंने कैसे निकाली है, ऊंचाई ऑफ द ट्राइंगल देखी है तो वो 4 यूनिट्स आती है। एग्री? जी सर। इतना मुश्किल नहीं होता जितना मुश्किल बनाया जा रहा होता है। तो मैं, मेरे स्टूडेंट्स अक्सर आगे पीछे की स्ट्रीम्स देखकर मुझे मैसेज करते हैं। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि बेटा अगर आपने पूरा साल ऐसी टेक्निक्स नहीं पढ़ी है ना, तो फिर आपको नहीं फॉलो करना चाहिए, आप कंफ्यूज होते हैं फिर इसमें। यूज द डायग्राम टू फाइंड इंटरकोटाइल रेंज, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब नॉन कैलकुलेटर पेपर है तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना कि मल्टीप्लिकेशन बड़ी आसान होने वाली है, लेकिन आप लोगों ने थोड़ी सी वर्किंग अच्छी करनी है। एग्जामिनर को वर्किंग में क्या क्या चाहिए? इंटर क्वार्टाइल इज अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल क्या होता है बेटा? ये आपका होता है 75%। अच्छा, एक बच्ची ने मैसेज किया कि सर बेस 10 नहीं होगी। बेटा बेस 10 क्यों होगी, जरा पहले इधर देखें। यहाँ पे बेटा 7 है, क्लियर हम ना? यहाँ पे बेटा -5 है, तो इसका मतलब है ये हो गए 5 यूनिट्स और ये हो गए 7 यूनिट्स। एनी प्रॉब्लम? ओ ओ सॉरी 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 सॉरी, माय बैड माय बैड, मैंने 7 लिया इसको। दिस इज नॉट 7, ये यहाँ पे इसके दरम्यान में 5 है। तो 5 + 5 इज 10। थैंक यू सो मच, ये हमारी गलती थी। थैंक यू सो मच। 1/2 इंटू 10 इंटू 4। सो 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो 2 10s are 20 आता है। तो 20 इज द आंसर। थैंक यू सो मच यार, बाकी सब ने क्यों नहीं नोट किया ये मिस्टेक? मैंने गलती काउंट की 12, तो वो 10 यूनिट्स आ रहे थे, जबकि 4 और 6 के दरम्यान में 5 होगा। ठीक है? आगे चलते हैं। अच्छा, अपर क्वार्टाइल जो होता है बेटा 75% होता है। तो 75% को मैथ्स में बस ये याद रख लो कि आपने अपर क्वार्टाइल के लिए हमेशा लिखना है 3/4 और लोअर क्वार्टाइल के लिए लिखना है 1/4, ताकि आसान रहे मल्टीप्लीकेशन। तो अपर क्वार्टाइल इज 3/4 ऑफ 60, क्योंकि टोटल 60 अनियंस हैं। तो 4 1s are 4, और 4 टाइम्स 15 इज 60। सो 3 टाइम्स 15 इज 45th वैल्यू। तो ये आएगा बेटा 45th माइनस 15th वैल्यू। अब 15 कैसे निकाला? ऑब्वियसली 1/4 ऑफ 60 जो है वो 15th वैल्यू आएगा। दैट इज नॉट माई आंसर, ये मेरा आंसर नहीं है। आपने ऊपर जाके 45th और 15 को हिट करना है। ये मेरा 15th वैल्यू है, इसको मैंने हिट किया ग्राफ के साथ, और यहाँ से नीचे आ गया, मैंने यहाँ पे वैल्यू देखना है। ये वैल्यू एग्जामिनर को भी इसी तरह डॉटेड में शो कर देना। तो ये बेटा यहाँ पे 210 होगा, तो ऑब्वियसली ये 205 है। ओके, अब 45th देख लो। 45th 40 और 50 के दरमियान में होता है, तो ये यहाँ पे हिट करो। यहाँ से आके नीचे देखो, ये आ गया बेटा 300, ये आसान था। तो ये आ गया बेटा 300, तो ये हमारा अपर क्वार्टाइल है और ये हमारा लोअर क्वार्टाइल है। ठीक है? तो ये हो गया अपर क्वार्टाइल और दिस इज लोअर क्वार्टाइल।
बेटा 300 में से जब मैं माइनस करता हूँ 205 तो मुझे मिलता है 95। तो 95 का जो है ना 95 ग्राम जो है ना ये आपका आंसर है। अंडरस्टूड? क्लियर हो गया बच्चा सबको कि नहीं? बेटा सबको क्लियर हुआ कि नहीं? थैंक यू। ओके, an onion is large if the mass is at least n grams. 24 of the 60 onions are large. तो क्या ये फर्स्ट 24 लार्ज होंगे या लास्ट वाले 24 लार्ज होंगे? माइक ऑन कर सकते हैं बेटा? Which 24 onions will be the would be the large ones? पहले 24 या आखिरी वाले 24? फर्स्ट वाले नहीं, लास्ट 24 जो होंगे वो लार्ज होंगे। इसका मतलब है कि वो 24 अनियंस जो हैं वो यहां से काउंट करने हैं 20। ये हो गया 20 और ये हो गया बेटा 24, क्योंकि इनके दरमियान में अब जरा गौर कर लें थोड़ा सा कि अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि लास्ट वाले क्यों, क्योंकि याद रखें ये 40 और 30 के दरमियान में 10 अनियंस हैं, तो ये 2 लिए हैं मैंने अभी, ये 3 और ये 4 हो गए। इसका मतलब है दीज अनियंस आर लार्ज अनियंस, आखिरी वाले लार्ज होंगे, क्योंकि मास जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब लास्ट 24 की बात होगी, तो लास्ट 24 कुछ यहाँ पे होंगे। तो 60 माइनस 24 आप वर्किंग में कर लो, 60 माइनस 24, तो ये आ रहा है 46 अनियन। तो 46 अनियन जो है वो हमारा लार्ज अनियन मास है। तो ये हो गया बेटा 46 अनियन। तो ये यहाँ से मैं गया इधर, इसको मैंने हिट किया, कर्व के साथ हिट करें, अपने दिमाग से नहीं। बेटा ग्रुप में भेजा हुआ है, देख लो वहां पे कि कौन सा ही है। यहाँ से मैं जा रहा हूँ, इसके बिल्कुल दरमियान में जाना है मुझे, यहाँ पे ये 300 है, ये 305 है, तो 305 का दरमियान में क्या होगा? आपको पता है कि 305 का मिड पॉइंट क्या होता है? 302.5 होता है। तो दैट इज व्हाट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो 302.5 जो है वो कहता है ना कि इफ द अनियन इज लार्ज इफ इट्स मास इज एटलीस्ट एन ग्राम्स, तो एन ग्राम्स होना चाहिए। 24 ऑफ द 60 अनियंस आर लार्ज, तो आखिरी जो 24 होंगे वो लार्ज होंगे, ये शुरू के 24 लार्ज नहीं बोल सकते रामीन हम इसको। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ? जी सर। चले, थैंक यू। चले जी, द डायग्राम शोज टू मैथमेटिकली सिमिलर मग्स। अब याद रखें इनलार्जमेंट होती है ये, ठीक है, और इसके लिए हमारे पास सिमिलैरिटी के 3 फार्मूले हैं, और वो 3 के 3 फार्मूले जो हैं उनमें से 2 फार्मूले जो हैं वो नॉन कैलकुलेटर में टेस्ट होते हैं। वो होता है एरिया और वॉल्यूम वाला, ठीक है। द स्मॉल मग हैज़ अ वेट W एंड इट होल्ड्स 270 ml, तो इसमें 270 ml कॉफ़ी आती है। लार्ज मग हैज़ अ 8 सेंटीमीटर, और इसका वॉल्यूम आपके पास गिवन नहीं है, तो हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है सिमिलैरिटी में। V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 होल क्यूब। अब ये मेरा V1 है जो कि अननोन है, तो अननोन शुड बी इन द न्यूमरेटर, तो हम लिख देंगे V1 डिवाइडेड बाई V2 270 इज इक्वल टू L1 जो है बेटा वो है 8, और L2 जो है वो बेटा है आपके पास W। L2 कितनी है आपके पास? W, 640। एक मिनट, V1 जो है हमें क्वेश्चन में गिवन है विच इज 640, क्योंकि W इज अननोन, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 640। तो अब हमें थोड़ा सा और चेंज करना है, यहाँ पे गलती हो गई है, फॉर्मूला ठीक है लेकिन यहाँ पे हमने V1 की वैल्यू जो है ना क्वेश्चन में रीड नहीं की। तो V1 जो है हमारे, ये V जो है हमारे पास इसकी कैपेसिटी है, इसकी जो कैपेसिटी है सेकेंड कप की वो है 640 ml, ठीक है। अब याद रखें हमारे पास इसमें लेंथ इज अननोन, वी डू नॉट हैव एनी लेंथ, हमारे पास लेंथ नहीं है इस क्वेश्चन में। So I will say that this is my L1 और this is V1. So this is my L2 and this is V2. So हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसको, तो V1 की वैल्यू है हमारे पास 270, ओके। V2 की वैल्यू है हमारे पास 640। L1 जो है बेटा मेरे पास W है, और L2 जो है वो 8 है, और विद होल क्यूब। सिंप्लीफाई करने से पहले मेरा बेटा मैं जीरो जीरो को कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। और अब मैं वहाँ से क्यूब को जब यहाँ पे लाऊंगा तो वो क्यूब रूट हो जाएगा, तो क्यूब रूट of 27 and cube root of 64,
तो बेटा आपको पता है कि वहाँ पे W/8 रह क्या है, मैंने आपको पढ़ाया कहा था कि पहले 10 क्यूब्स याद रखें। क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3, क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4 इज इक्वल टू W/8। अब करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 8 इज इक्वल टू 4W, 3 8 = 24 इज इक्वल टू 4W, डिवाइडेड बाय 4 ऑन बोथ साइड, तो 4 4 कैंसिल। तो W इज इक्वल टू 24/4 जो आता है, W की वैल्यू आ रही है 6। 6 मार्क के लिए ये आप लोगों का 6 इज द आंसर, और 2 मार्क्स थे इस क्वेश्चन के, ठीक है। क्लियर है जी सबको? आगे चलते हैं। सिंप्लीफाई, नंबर नहीं ज़ाया करना यहाँ पे। 16a23 पावर 4, तो ब्रैकेट के बाहर पावर लगी है तो डिस्ट्रीब्यूट द पावर फर्स्ट। 16 पावर 3/4 and a20 पावर 3/4। बेटा देर इज अ हिंट हियर, there is a hint here because we have 4 here, so this is something with power 4। तो आपको पता है कि सबसे छोटा even number 2 है, and 2 cube is 8 and 2 power 4 is 16, so I can replace 16 with 2 power 4 with 3 power 4। अब यहाँ पे bases powers आपस में multiply होंगे ऐसे। आप यहाँ पे तो 4 4 काट सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 क्यूब। अब a के ऊपर क्या आएगा, 4 1 जार 4, 4 5 जार 20, 4 1 जार 4, 4 5 जार 20, तो 5 3 जार 15। अब ये 2 क्यूब a15 नहीं लिखना, 2 क्यूब है आपके पास 8, a15, दैट इज व्हाट योर फाइनल आंसर इज। देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई। अकॉर्डिंग टू माय गेस यू विल गेट 3 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 ब्रैकेट्स इन पेपर। आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 ब्रैकेट्स मिलेगी, 2 नहीं। तो 2 अगर आती है तो आपने क्या करना है, 3 अगर आती है तो पहले आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आए तो उसको थर्ड से मल्टीप्लाई करना। तो हम यहाँ पे पहले 2c को मल्टीप्लाई करेंगे 4c - 3d सेकेंड ब्रैकेट से, फिर +9d को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड ब्रैकेट से। तो ये आ जाएगा बेटा 8c² -6 2 जार 2 3 जार 6cd प्लस 9 4 जार 36 36dc प्लस माइनस इज माइनस 9 3 जार 27d²। अब याद रखो यहाँ पे मैंने खुद जान पूछ के 6cd और 36dc लिखा है, इनके अल्फाबेट्स आगे पीछे हैं बट दे द सेंटर टू आर द लाइक टर्म्स। तो प्लस माइनस इज माइनस, साइन प्लस का आएगा तो ये आ जाएगा बेटा 30dc -27d²। ये होगा बेटा इसका एक्सपैंड फॉर्म। अगर 3 ब्रैकेट मिले तो पहले 2 को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना, और आंसर निकालने के बाद फिर तीसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है बच्चों। मैट्रिसेस इज आउट, तो हम इस क्वेश्चन को काट देंगे यहाँ पे। आगे चलते हैं, फंक्शंस। फंक्शंस में अब इस दफा कंपोजिट फंक्शन भी है, तो हम यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन के भी एक दो पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। f7, तो f के अंदर -7 पुट करें तो f-7 वुड बी इक्वल टू 3 टाइम्स -7 -1/2। आपने राइट साइड को सॉल्व करना है, लेफ्ट को नहीं। तो 3 इंटू -7 इज -21 -1 डिवाइडेड बाई 2, -21 -1 इज -22 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर -11 आएगा 1 मार्क के लिए। वो कहता है एफ इनवर्स निकालो, आपको जी इनवर्स भी कह सकता है। एफ इनवर्स क्या होगा, लेट फंक्शन इक्वल्स वाई, आप फंक्शन को वाई के इक्वल लिखो। सेकंड स्टेप होता है मेक एक्स द सब्जेक्ट। अब एक्स को सब्जेक्ट बनाओ, करंटली वाई इज द सब्जेक्ट, तो 2y इज इक्वल टू 3x -1, -1 यहाँ पे आएगा, 2y + 1 इज इक्वल टू 3x। अब 3 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y + 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू x। x सब्जेक्ट बन गया। जब आपका x सब्जेक्ट बन गया, सो रिप्लेस x विद y, आप x को y के साथ रिप्लेस कर लो, तो y इज इक्वल टू 2x + 1/3। so that is what your inverse of the function is। तो यहाँ हो गया आपका आंसर 2x + 1/3। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट कहता है f(9/25) इज इक्वल टू g(x)। ओके, तो पहले जरा f(9/25) निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। तो पहले f(x) वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। बेटा वी नो दैट अब्बास दैट f(x) इज 3x - 1/2। एनी प्रॉब्लम? इन प्लेस ऑफ x आप 9/25 पुट कर दें, तो 3 ब्रैकेट 9/25 -1 होल डिवाइडेड बाई 2। एनी प्रॉब्लम उबैद?
9 threes are 27. 27 divided by 25 minus 1 whole divided by 2. अब 27 माइनस 27 बाई 25 को के नीचे आपको ऑब्वियसली पता है कि आपको डिनोमिनेटर सेम करना है, तो इंस्टेड ऑफ 1 जो है मैं 25/25 लिख दूं तो वो भी 1 ही आएगा, तो वो शॉर्टकट है। अगर नहीं आता तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, 27/25 माइनस 1, इसको ब्रैकेट में लिख दें और ये डिवाइड बाई 2 कुछ ऐसे लिख दें ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करना है, तो यहाँ पे ऊपर नीचे 25 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है ताकि आपको समझ आ जाए। 27/25 माइनस 25/25 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई 2 ऐसे। अब मैं इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, अगला स्टेप मैं यहीं पे ले रहा हूँ। तो 27 में से 25 गया तो 2 आता है, तो ये आ जाएगा बेटा 2/25 डिवाइड बाई 2। आपको पता है डिवाइड बाई 2 को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 2/25 मल्टीप्लाई विद 1/2। तो 2 कट गया, तो हमारे पास आंसर आया 1/25 इस लेफ्ट साइड से। तो इसका मतलब है 1/25 इट इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स इज 5 पावर एक्स। ओके, I know that Abbas that 25 is 5 square. I can write 5 square in the denominator here. Can I? 5 square can go upwards to, it will be 5 power minus 2 is equals to 5 power x. Now you can see that the left side and right side, they both look alike. So the powers are equal. So x is equals to minus 2. That is what the final answer is for 2 marks. Easy everybody or not? इशाल समझ आया बच्चा? अब्दुल्ला अफरीदी, अरबाब, मनाहिल, उमायमा, अहमद जहीर, थैंक यू। अच्छा, आगे चलते हैं। इसके साथ ही मैं एक कॉम्पोजिट फंक्शन का पार्ट भी यहाँ पे कर रहा हूँ, जो पेपर में आप न्यू सिलेबस के अंदर आता है और हमने पढ़ा भी हुआ है। वो कहता है कि लेट सपोज FG(x) के FG(x) करो या GF(x) करो, तो उसके लिए आपके लिए एक दूसरा फंक्शन यहाँ पे लेता हूँ ताकि आपको आइडिया दिलवा दूँ। मैं f(x) लिखा हुआ है, और मैं यहाँ पे f(x) के लिए मैं यहाँ पे एक ले रहा हूँ h(x) विच इज इक्वल टू 2x, लेट सपोज 2x+5, कि वो 2x+5 के बराबर है। तो h(x) जब 2x+5 के बराबर है तो रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज GH(x), लेट सपोज। तो इसका मतलब है कि यू हैव टू राइट द फंक्शन ऑफ g एंड यू हैव टू पुट hx इन g। सो यू रिमेंबर वन थिंग, दैट दिस hx द सेकंड वन इज योर इनपुट, ये आपका इनपुट है, ठीक है बस। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? सो यस बेटा, सर। बेटा gx क्या है आपके पास? gx इज 5 पावर x, एग्री और नॉट? अब इंस्टेड ऑफ x आपने सिर्फ और सिर्फ hx को डालना है, तो यहाँ पे आ जाएगा hx, और यहाँ पे x की जगह पे hx आ जाएगा, और hx की जगह पे मैं hx की वैल्यू लिख दूंगा विच इज 2x+5। तो ये आंसर हो जाएगा आपके लिए। अंडरस्टूड एवरीबॉडी और नॉट? चलें जी, क्वेश्चन नंबर 23। अब आपके पास सेट्स एंड वेन डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन है। A theater offer a single singing lesson, a dancing lesson, and an acting lesson. A group of 40 people are asked which lesson they take part in. Some of the results are shown in the Venn diagram. आपके कुछ results Venn diagram में show हो रहे हैं। All 40 people they take part in at least one lesson. So जब सबके सब कुछ ना कुछ lesson में लेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। देख ले बेटा ये क्वेश्चन एक दफा, और स्क्रीनशॉट लेना चाह रही है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलें जी। 3 people take part in singing lesson and an acting lesson but not on a dancing lesson. तो बेटा you can see that 3 people they take part in singing lesson and an acting lesson but not on a dancing lesson. Singing और acting ले रहे हैं लेकिन dancing नहीं ले रहे, तो इसका मतलब है वो यहाँ पे आएंगे 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। तो we are done with these 2 lines. 7 people they take part in a dancing lesson only. तो 7 people they take part in a dancing lesson only, तो dancing lesson only is 7 here। तो हमारी थर्ड लाइन भी क्लियर हो गई। 19 people they take part in a singing lesson। 19 people जो टोटल है वो सिंगिंग लेसन में टोटल 19 लोग आएंगे। देयर शुड बी टोटल 19 people, ठीक है।
So I can say that okay, this is दो एरियाज रहते हैं हमारे पास, तो इन दोनों में भी दो नंबर्स ऐड करेंगे तो टोटल 19 आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि 6 + 3 इज व्हाट 9। तो दिस इज x and this is y, so I got the idea that x plus y plus 6 plus 3 it should be equals to 19। so x plus y is equals to 19 minus 6 minus 3, so x plus y is equals to 10, Ramin. Okay, now 4 times as many people they take part in singing lesson only as those who take part in all three lessons. So all three lessons are y and they are 4 times. ठीक है, so singing lesson में 4 times हैं, तो I can say that okay, so they are 4 times, so I can say one thing, so that if this is 4x, so that would be x only, and 4x plus x, we got the idea that 4x plus x is equals to 10. So 5x is equals to 10. So x is equals to 10 by 5. So it means that x is equals to 2. इसका मतलब है I suppose that part center part as x, so it means that कि यहाँ पे ये center में जो लोग हैं ये आपके पास आएंगे 2, और यहाँ पे आपके पास लोग आ जाएंगे टोटल। यहाँ पे हमने कहा है ना कि x plus y 10 के बराबर आएगा, हमने पहले इसको y की इक्वल भी किया था, तो 10 के बराबर आएगा। 10 में से 2 निकालें तो यहाँ पे आएगा 8। अब ज़रा काउंट कर लें कि टोटल नंबर ऑफ 40 बनता है कि नहीं। अगर 40 बन गया तो हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया। लेट्स सी, 8 + 6 + 7 कितना आ रहा है, काउंट करें बेटा प्लीज। 8 + 6 + 2 + 3 तो 19 हो जाएगा, तो 19 + 7 इज 26। 26 + 10 इज 26 + 10 इज 36। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ पे हम लिखते हैं 4। लेट्स काउंट वन मोर टाइम, एक दोबारा जरा गिनते हैं प्लीज। 8 + 6 is 14, 14 + 2 is 16, 16 + 3 is 19, 19 + 7 is 26, 26 + 10 is 36। तो यहाँ पे आ गया जी 4। अब इन्होंने क्या कहा था कि अब दोबारा एक दफ़ा रीड करते हैं कि जी हमने कोई गलती तो नहीं की। ऑल 40 people they take part in at least one lesson, okay. 3 people they take part in a singing lesson and an acting lesson but not on a dancing lesson, okay, that is also fine. Okay, next is 7 people they take part in a dancing lesson only, so 7 is appropriately written. Okay, then 19 people they take part in a singing lesson, okay, according to our calculation that is 19 as well. 4 times as many people they take part in a singing lesson only as those who take part in all three lessons. So 8 and 2 is already 4 times of each other, not each other. 2 is 4 times half, ये half है, so 2 times 4 is also 8. Use this information to complete the Venn diagram. My Venn diagram is completed, so we will get 3 marks for that. और हमने वर्किंग जो ऊपर की है नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। अच्छा, यूज द सेट नोटेशन टू डिस्क्राइब सबसेट विद 10 पीपल। तो हमें इसके बारे में बताना है कि ये क्या चीज है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि आपको जब इसके बारे में बताना है तो मेरा वो लेसन याद करो, शेडिंग ऑफ 3 सेट्स वाला, ठीक है। देयर आर 3 सेट्स S, D and A. So S united with D but it is out, S united with D but it is out, and it is intersected with A because the outside is not shaded, बाहर शेड नहीं है। अगर ये बाहर भी शेड होता 10 के साथ तो इसका मतलब है कि S union D out united with A होता, तो that is what your answer is, S union D whole complement intersection A। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, A intersection S union D whole complement, ठीक है जी। that is what the final answer is। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 24, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फाइंड द पी एंड क्यू इज गिवन, फाइंड द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फॉर्मूला याद कर ले तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट इज यहाँ पे x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला ना भी लिखें तो फर्क नहीं पड़ता, एवरेज है। तो -1 + × -3 / 2 कॉमा
4 प्लस इंटू माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, x1 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। दो पॉइंट्स का दो कोऑर्डिनेट्स हैं, उनका मिड पॉइंट क्या होगा, वो भी एक कोऑर्डिनेट होगा। तो ये आएगा बेटा -4/2 कॉमा 4 - 2 इज 2 तो -4/2 इज -2 एंड 2/2 इज 1। ये करने के बाद जरा वर्किंग में देखना प्लस माइनस की गलती ना हो, वरना बहुत आसान क्वेश्चन मिस कर जाओगे। Find out the equation of the line which is perpendicular to PQ. Okay, goodness me. So this is PQ. Okay, so this is P and that is Q. Find the equation of a line which is perpendicular to PQ and passes through the P. Perpendicular to PQ and it passes through P. Okay, तो it passes through P तो मतलब ये यहाँ से जाएगी perpendicular to Q and passes through P. तो बेटा यू नो दिस दैट दिस इज m1, तो यहाँ पे इसका ग्रेडियंट होगा m2। तो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। लेट्स फाइंड आउट m1। m1 इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 इज -2 -4। x2 माइनस x1 इज -3 माइनस इंटू -1 -6 माइनस माइनस प्लस -3 + 1 इज -2। So m is equals to +3। So m1 is equals to 3। तो बेटा m2 होता है reciprocal of m1 with change sign। तो reciprocal of 3 is positive 1/3 and change sign वो प्लस था, ये माइनस में होगा। अगर ये किसी को नहीं आता और किसी ने पढ़ा हुआ है थ्योरम के साथ, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 करें तो m1 की वैल्यू 3 आई है, तो ये हो गया -1, तो m2 की वैल्यू आएगा -1/3। आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया y इज इक्वल टू -1/3 x प्लस c, क्योंकि ग्रेडियंट मिल गया आपको विच इज परपेंडिकुलर एट पॉइंट p। नाउ पुट पॉइंट p, पुट p एंड p का कोऑर्डिनेट क्या है -1, 4। तो y की जगह पे 4 डाल दें, -1/3 x की जगह पे -1 प्लस c माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू +1/3 प्लस c। +1/3 को लेफ्ट साइड पे ले जाएं, 4 - 1/3 इज इक्वल टू c। डिनोमिनेटर सेम कर लो बेटा ताकि आसानी हो जाए। तो c इज इक्वल टू 3 4 12/3 -1/3। 12 में से 1 गया बेटा 11 आता है। c इज इक्वल टू 11/3। सो फाइनल आंसर हो जाएगा y इज इक्वल टू mx। m की वैल्यू थी -1/3x और c की वैल्यू है +11/3। That is what your final answer for this coordinate geometry question is। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो आपके पास है हिस्टोग्राम के ऊपर। हिस्टोग्राम का बस फॉर्मूला याद रखें, एफ डी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल। मल्टीप्लाई बाय के भी होता है फॉर्मूले में, लेकिन अभी क्योंकि फॉर्मूले से हट गया है तो पेपर में के की वैल्यू को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल जो है ना, बस वो काफ़ी रहेगा। द एफ डी फॉर द फर्स्ट पिलर 0 to 5 इज गिवन विच इज 6, ये 6 है। तो एफ डी इज इक्वल टू बाकी के निकालने हैं हम लोगों ने। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 25 है और क्लास इंटरवल 5 है, तो ये आ गया 5। क्लास इंटरवल में होता है 10 - 5 को निकालते हैं। यहाँ पे 35 फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल है 10, तो ये आएगा 3.5। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 20 है, क्लास इंटरवल भी 20 है, तो ये आएगा 1। तो 5 और 10 तक होगा 5 का पिलर, 5 to 10 होगा 5 का पिलर, तो ये हो गया 5 to 10। रूलर से ड्रॉ कीजिएगा। 10 to 20 द पिलर वुड बी 3.5। ओके, एंड 20 to 40 द पिलर वुड बी 1। एक स्टूडेंट ने मुझे कल क्वेश्चन पूछा कि सर क्या मैं इसको शेड कर सकता हूँ। बेटा आप डेफिनेटली इसको शेड करना, जस्ट फॉर द सेफ साइड, ताकि आप पेपर में जो है ना, ये पेपर आपका स्कैनिंग के लिए विजिबल रहे। तो स्टूडेंट ने कहा कि सर कैसे शेड करूं, तो मैंने उसको रिकमेंड किया कि आप इसकी जब शेडिंग कर रहे हो तो आप इसके अंदर लाइंस ऐसे ऐसे भी लगा सकते हो। जब आपने यहाँ पे लाइंस ऐसे ऐसे लगाई हैं तो इस साइड पे लाइंस फिर ऐसे लगा दो। अब इस साइड पे लाइंस ऐसे लगा दो, खूबसूरत हो जाएगा काम थोड़ा सा। ठीक है, क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन, वेक्टर्स। सब बच्चे बहुत डरते हैं वेक्टर से, तो वेक्टर से डरने की जरूरत नहीं है। क्यों, देखो 1 + 2 3 एंड 3 + 1 4 नंबर है यार। 4 नंबर का क्वेश्चन है, कोई 400 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता वेक्टर्स के ऊपर। ठीक है,
तो मोस्ट प्रोबेबली आपके 100 मार्क के पेपर में भी 5 से 6 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन वेक्टर्स का आएगा ही नहीं, और पेपर 2 में तो आएगा ही। विद कैलकुलेटर में तो वेक्टर नहीं आएगा, ठीक है, डोंट वरी, ये नॉन कैलकुलेटर टॉपिक है। इन द डायग्राम ओ टू ए इज स्मॉल ए नजर आ रहा है मुझे, जो गिवन है मैंने उसको शेड करना है। ये गिवन है मेरा बच्चा मुझे, ओ बी भी गिवन है, ये भी गिवन है मुझे, चलो भाई ठीक हो गया। जब ये दो गिवन है मैं ए बी निकाल सकता हूँ, और वही मुझसे एग्जामिनर मांग रहा है, बाकी क्वेश्चन नहीं पढ़ा मैंने भी। तो ए टू बी, बेटे ए पे मैं गाड़ी में बैठा हूँ, लेट सपोज दिस इज मी, दिस इज सरवासिक, आई वॉन्ट टू ट्रैवल टू बी, मैं डायरेक्ट नहीं जा सकता, वे इज नॉट क्लियर, ब्रिज नहीं है, तो आई विल गो ए टू ओ एंड ओ टू बी। एग्री और नॉट? एग्री और नॉट बेटा? तो इट वुड बी ए टू ओ प्लस ओ टू बी। तो बेटा ए टू ओ जो होगा वो नेगेटिव ए होगा, और ओ टू बी है वो प्लस टू बी है। ठीक है जी बेटा, समझ आया सबको? तो ये आएगा बेटा माइनस ए प्लस टू बी, माइनस ए प्लस टू बी। अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज माइनस ए प्लस टू बी, ये हमने फाइंड कर लिया। अब शो दैट, अच्छा अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एग्जामिनर कह रहे हैं कि ए बी जो है वो 1 रेशो है, और बी सी जो है वो 3 रेशो है। ओके, ये मुझे समझ तब आएगी जब मैं इसको लाइन को बाहर निकालूंगा। मैं एज अ टीचर भी इस लाइन को बाहर निकालता हूँ, आप लोग नहीं निकालोगे तो गलती करोगे। ए बी एंड दिस इज सी। बेटा वो कह रहा है कि ए बी इज 1 and B to C is 3 pieces. So it means that total are 4 pieces. I have 1 by 4, which is equals to minus A plus 2B. Minus A plus 2B. I need this BC, which is X. X नहीं है मेरे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, आ जाएगा। लेट्स सी, मैं यहाँ से ये निकालो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे, तो 1/4 x इज इक्वल्स टू 3/4 मल्टीप्लाई विथ माइनस ए प्लस टू बी। आई मीन 4 काट दिया मैंने। x इज इक्वल्स टू -3a प्लस 6b। तो ये x क्या था, ये बी सी वैक्टर था, तो ये आ गया बेटा -3a प्लस 6b। एग्जामिनर मांग रहा था ओ सी, चलो जी सरबासे को यहाँ पे खड़ा करो। ओ टू सी जाना है, नहीं जा सकते, ओ टू बी प्लस बी टू सी, तो मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे यहाँ पे जाना है, तो ओ टू सी प्लस सी बी। तो ओ टू सी इज इक्वल्स टू ओ टू बी प्लस बी सी। ओ टू बी कितना है बेटा, 2b है। बी सी कितना है बेटा, ऊपर लिखा हुआ है -3a प्लस 6b। बी बी को एक दूसरे के साथ ऐड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा -3a, 2b प्लस 6b इज 8b, -3a प्लस 8b शोन। रामीन क्लियर है बेटा? जी सर। समझ आई है कि नहीं? जी सर। ओके, कहते हैं ओ बी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, ओ बी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ओ बी डी जो है वो आपके पास स्ट्रेट लाइन है। कहता है ए टू डी इज के टाइम्स ऑफ ओ सी, कहता है ए टू डी जो है ये के टाइम्स ऑफ ओ सी है, मतलब ये इसकी बात कर रहा है। ओके, कहता है ए टू डी इज के टाइम्स ऑफ ओ सी। तो अब याद रखें कि मैं आपको एक ऑब्वियसली एक रियल लाइफ की बात समझा रहा हूँ, तो काइंडली प्लीज पे अटेंशन, समझ डाल लेना थोड़ी सी। फर्स्ट ऑफ ऑल रामीन, यू कैन सी दैट इट्स अ 1 मार्कर क्वेश्चन, 100 मार्क्स नहीं है इसके। जी सर। ओ ए प्लस ओ सी, तो ओ ए प्लस ओ सी, तो ओ सी होता तो तब करते ना मनाहिल। ओ ए प्लस, अच्छा ओ ए प्लस ए सी, तो ओ ए प्लस ए सी, हाँ हम वो भी कर सकते थे, वो लंबा रास्ता था ना, शॉर्टकट्स लेने चाहिए, अच्छा लॉन्ग रूट्स ना लिया करें, ठीक है। अच्छा रामीन, वो कहते हैं कि ए डी इज इक्वल टू दैट दिस थिंग इज समथिंग मल्टीप्लाइड विद ओ सी। ओके, जी सर। so we can see one thing that these two triangles are similar to each other, agree or not? जी सर। क्योंकि ये इसका enlargement हुआ हुआ है, ये बड़ा है और ये स्मॉलर है, एग्री और नॉट? जी सर।
डेफिनेटली यहाँ पे कोई स्केल फैक्टर होगा और वो स्केल फैक्टर मिसिंग है और उसी को हमने फाइंड करना है। ओके, जी सर। तो वो कह रहे हैं आपको कि दैट ए टू डी इट इज के टाइम्स ऑफ ओ सी। अब इसके मल्टीपल अप्रोचेज हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपको ऑलरेडी ये क्वेश्चन में इसका स्केल फैक्टर गिवन है और वो इन टर्म्स ऑफ रेशो गिवन है, तो आप मुझे बता सकती हैं वो क्या है? चलें बताइएगा ना प्लीज। Ramin, this is 1 and this is 3. Can you see that? It's 1:3. Yes or no? सर कहाँ पर? डायग्राम देखिए ना जरा प्लीज। ए टू ओ बी 1 है और बी टू सी 3 है नहीं? जी सर है। तो क्या यहां से यहां तक का स्केल फैक्टर 3 होगा? होगा। सॉरी, -3 होगा। -3 होगा कि नहीं? होगा सर। क्यों? क्योंकि देखें ना, आपकी enlargement भी हुई है और शेप फ्लिप भी हुई है फिर दोबारा। एग्री? जी ये क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास। हमें पता है कि ए ए डी मुझे कैसे मिलेगा। ए डी मिलेगा मुझे ओ सी को डिवाइड बाय 3 करके। यस और नो? जी सर। सो इट मीन्स दैट ए टू डी वेक्टर would be equals to 1/3 of OC. Yes or no? Yes or no? जी सर। अब वो क्योंकि ए डी एक वेक्टर है उसकी लेंथ मांग रहा है, तो हमें स्केल फैक्टर नेगेटिव में लिखने की जरूरत नहीं है। वो स्केल फैक्टर नहीं मांगा। अगर स्केल फैक्टर मांगता तो हम -1/3 लिखते और सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट होता पॉइंट बी। ठीक है, so the value of k is 1/3 because AD vector it's 1/3 of OC because of the scale factor। ठीक है बेटा? जी समझ आया चीज सबको? ठीक है जी, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए डी इज के टाइम्स ऑफ ओ सी। तो ए डी इज के टाइम्स ऑफ ओ सी मतलब इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी आएगा। अब हमने जब ये ट्राइंगल को ओवर से देखा था, ये हमारे पास सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट बनाता है। इन्होंने कहा था कि यार ये 1:3 है। तो जब ये 1:3 है तो ये भी 1:3 होंगे और ये लेंथ भी 1:3 होंगे। ठीक है, ये लेंथ के बारे में भी हमें ये क्लियर हो गया था। हमें पता है कि यार ओ सी को डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हमारे पास ए डी आएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। पेपर फिनिश, डन, डस्टेड। चलें जी, रात को एक दूसरी क्लास भी होगी, उसमें हम करेंगे विद कैलकुलेटर। तब तक नॉन कैलकुलेटर की प्रैक्टिस करें। सर्च को ज़रूर प्रैक्टिस करें, न्यू टॉपिक है। क्वेश्चन था नहीं पेपर में वरना मैं करा देता। वर्कशीट्स मैंने भेजी हुई हैं, उसको प्रैक्टिस करें। रात को इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। घर में गेस्ट नहीं हुए तो इंशाल्लाह आई विल टेक अ क्लास ऑफ पेपर 4 एज वेल विद कैलकुलेटर। अगर मैंने क्लास ना ली तो एक विदाउट कैलकुलेटर विद कैलकुलेटर वाले की वीडियो भेज दूंगा, वो देख लेना। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। तो अल्लाह हाफिज। सर जो हमने कल पेपर स्टार्ट किया था वो कब फिनिश होगा? ये मैं कर लूँ खुद? हो जाएगा, हो जाएगा। उसमें 2-3